Section 10. Stay of suits. Indirectly doctrine of res sub judice. विचाराधीन न्याय का सिद्धांत. What provided under section 10 of the CPC? No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially an issue in a previously instituted suit between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where the such suit is pending in the same or any other court in India having the jurisdiction to grant the relief claim, or in any court beyond the limits of the India established or continue by the central government and having the like jurisdiction or before the Supreme Court. And there is an explanation. It is an exception of the section 10. Pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. What is the principle vested in section 10 or the purpose of the section 10? If any suit is pending before a competent civil court in India and another suit is instituted, subsequent suit is instituted, which is between the same parties in respect of the same matter and issue and litigating under the same title, and the courts before which the first suit is pending, the former suit is pending, is competent to grant the relief, whether subsequent suit is maintainable as per section 10? No. That subsequent suit shall be stayed by the virtue of the section 10 of the CPC and shall not be proceed with the trial in subsequent suit. It is barred under section 10 of CPC. But that former suit is pending before the foreign courts, then whether Indian courts have jurisdiction to try or proceed with the trial of the subsequent suit? Yes. As per the explanation of the section 10, if the former suit is pending before the foreign courts, then Indian court can proceed with the trial in respect of the subsequent suit. What are the essential ingredients or the purpose etc. of the section 10? Object of this provision is prevent the courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining the two parallel litigation in respect of the same dispute, generally come in force while framing issues in the subsequent suit. When the provision of section 10 invoked, the court can exercise the power conferred under section 10. Generally, as per the interpretation of the book, when the issues have been framed in the subsequent suit, then court can exercise the power conferred under section 10. But in practical sense, in my opinion, is that before the framing of the issues in subsequent suit, court can exercise the power conferred under section 10. If court is satisfied the parties are same, the matter and issues are same in the both the suit litigating under the same title, court shall stay the suit even earlier to the stage of the framing of issues in the subsequent suit. Section 10 does not prevent the institution of the subsequent suit. What is prevent under section 10? Proceed with the trial in subsequent suit is barred by the section 10 of CPC. The subsequent suit may be instituted. Institution of the subsequent suit is not barred by the section 10. What is barred? Proceed with trial in subsequent suit is barred by the section 10. It laid down, means the section 10 laid down a procedure, rule of the procedure pure and simple, and which can be waived by a party. Hence, if the party is waived their rights and expressly ask the court to proceed with the subsequent suit, they cannot afterward challenge the validity of the subsequent proceeding. As per the interpretation of the section 10, parties can waive the right conferred under section 10 and make a request from the court to proceed with the trial in subsequent suit. But once a request has been made by the parties, the party waive their rights to challenge the validity of the subsequent suit by the virtue of the section 10 of the CPC. What are the essential ingredient of the section 10 of CPC or stay of the suit or the doctrine of res sub judice? There must be two suits, one previously instituted and another is subsequently instituted. Second, matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially an issue in the previous suit, means
indirectly matter in issues directly and substantially are same in the both the suits. Both the suits must be between the same parties or their representative. Parties must be same in the previous or the subsequent suit. The previously instituted suit must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought, or in any other court in India, or any court even beyond the limits of the India, but which must be established or continue by the authority of the central government. And even the former suit is pending before the Supreme Court, the provision of section 10 be applicable. The court in which the previous suit was instituted must have had the jurisdiction to entertain the same or to grant the relief claimed in the subsequent suit. The parties to the dispute must be litigating under the same title in the both the suits. And last essential ingredient of the section 10 or doctrine of res sub judice, court shall not proceed with the trial in subsequent suit, means the stay the subsequent suit, but interim order can be passed in the subsequent suit. It is not barred for the court before which the subsequent suit has been instituted. What is the exception of the doctrine of res sub judice or section 10? Explanation is the exception. What is the exception? Explanation is the exception. In explanation, not applied to the suit pending before a foreign courts on the same cause of action, means the doctrine of res sub judice or provision of section 10 not applies upon the suit pending before the foreign courts, means the two parallel suit may be continue, one before the foreign courts and another before the Indian courts. हिंदी में देखेंगे आप धारा 10 जो है वाद को रोक दिया जाना। कब वाद रोक दिया जाएगा? एक दूसरा प्रिंसिपल भी इसमें, जिसको क्या कहा जाता है? विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? विचाराधीन न्याय का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस। क्या आवश्यक तत्व है इस धारा 10 के और विचाराधीन न्याय के सिद्धांत के? उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच उसी हक के अधीन प्रत्यक्षता और सार्थता उन्हीं विवादकों के संबंध में पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया जाता है। जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद संस्थित किया गया है उसी न्यायालय में या भारत में अन्य किसी सक्षम न्यायालय में या भारत से परे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखे गए न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद लंबित है, तब पश्चातवर्ती वाद के विचारण में न्यायालय आगे कोई कार्रवाई है वो नहीं करेगा। इस मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि पश्चातवर्ती वाद को क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। जब पूर्ववर्ती वाद एक सक्षम न्यायालय में लंबित है और वो कोर्ट उन पार्टीज के राइट्स तय कर सकता है, तो यदि टू पैरेलल लिटिगेशन है वो कंटिन्यू रहेंगे तो टू डिफरेंट डिसीजन भी आ सकते हैं। एक ही डिस्प्यूट के बारे में दो भिन्न भिन्न निर्णय आ सकते हैं और ऐसे दो भिन्न भिन्न निर्णय आने पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसका एग्जीक्यूशन करवाया जाए, कौन से जजमेंट का निष्पादन है वो करवाया जाए। ऐसी है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो गड़बड़ा जाएगा। उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस परिस्थिति को जो है वो समाप्त करने के लिए सेक्शन 10 में प्रोविजन किया गया है। यदि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने कोई सूट फाइल कर दिया गया है और वो पेंडिंग है तो उसकी पेंडेंसी के दौरान दूसरा सूट उसी डिस्प्यूट के संदर्भ में सेम पार्टीज के बीच में इंस्टीट्यूट किया जाता है तो दूसरे सूट में ट्रायल नहीं होगी, उसको स्टे कर दिया जाएगा और फॉर्मर सूट में जो डिसीजन आएगा, डिसीजन आते ही अगला सेक्शन लग जाएगा। डिसीजन आने तक तो सेक्शन 10 है और जो ही जजमेंट आ जाएगा 11 लग जाएगा। रेस्ट जुडिकेटा के प्रभाव से वो सूट क्या हो जाएगा, जिसको सेक्शन 10 में किया था वो डिसमिस हो जाएगा। तो इसलिए जो है एक ही विवाद के बारे में दो विरोधाभासी निर्णय जो है वो पारित होने से रोकना जो है इस सेक्शन 10 का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कोर्ट का जो टाइम है, रिसोर्सेज है, उनको भी प्रिवेंट करना, उनको भी बचाना जो है वो उद्देश्य है। एक ही विवाद के बारे में दो कोर्ट है वो पैरेलल है वो अपने संसाधन खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं दो पत्रावलियों के संदर्भ में, तो न्यायालय का समय खराब होने से रोकना, न्यायालय के संसाधनों को खराब होने से रोकना भी है सेक्शन 10 का है वो पर्पज है। तो ये सभी आवश्यक तत्व है। पार्टी सेम होनी चाहिए, उसी हक के अधीन जो है वो मुकदमाबाजी है वो होनी चाहिए। दो बिंदु दोनों है वो एक साथ पहले पॉइंट्स में आ गए। विवादक जो है प्रत्यक्ष और सार्थक समान होने चाहिए, दोनों है वो वाद के अंदर। पूर्ववर्ती वाद जहां है वो संस्थित किया गया वो न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में जो क्लेम किया गया उसके बारे में अनुतोष देने के लिए सक्षम है वो होना चाहिए। जिस न्यायालय में पूर्ववर्ती वाद संस्थित किया गया है वो भारत में स्थित कोई न्यायालय होना चाहिए,
या भारत से बाहर स्थित केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित या चालू रखा गया न्यायालय होना चाहिए, या वो सर्वोच्च न्यायालय में भी पूर्ववर्ती वाद है वो लंबित हो सकता है। तो फिर पश्चातवर्ती वाद का क्या किया जाएगा? जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद के लंबित रहने के दौरान उसमें अभी डिसीजन या जजमेंट आया ही नहीं है, वो पेंडिंग है, ऐसी पेंडेंसी के दौरान सेकंड जो है वो सूट फाइल किया गया सेम डिस्प्यूट के संदर्भ में, उसको क्या कर दिया जाएगा? स्टे कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, उसमें आगे विचार में कार्रवाई नहीं की जाएगी इस धारा 10 के प्रभाव से और विचाराधीन न्याय के सिद्धांत के प्रभाव से। धारा 10 के प्रावधान पश्चातवर्ती संस्थित आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता में संक्षिप्त वाद पर लागू नहीं होते हैं। ये एक रूलिंग पढ़ेंगे हम, उस रूलिंग में ऐसा हेल्ड हुआ है। If subsequent suit is the summary suit within the meaning of the order 37 of CPC and there is no at all trial in that summary suit, therefore the proceed with trial, that terminology is not practically applicable upon that suit. The summary suit may be continue and that is not barred by the section 10 of the CPC. And interim order can also be passed by the court which stay the subsequent suit to exercise the power conferred under section 10 of the CPC. Indian Bank versus Maharashtra State Cooperative Marketing Federation Limited 1998 Supreme Court. What was held by the Supreme Court in this case law? Court held that the bar to proceed with the trial suit contained in section 10 is not applicable instituted to the subsequent summary suit filed under order 37 of CPC, because in a summary suit the trial really began after the court or the judge grant the leave to defend to the defendant to contest the case. If leave to defend has not been granted by the court in respect of the summary suit, therefore there is no at all trial in the summary suit, and in section 10 the proceed with the trial is barred, institution is not barred, therefore the summary suit may be continue and may be decided by the court as per this judgment of the Honorable Supreme Court. इंडियन बैंक बनाम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड 1998 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 का एक अपवाद बताया है। संक्षिप्त वाद है, यदि पश्चातवर्ती वाद आदेश 37 के अर्थ में, तो उस पर धारा 10 के प्रावधान लागू ही नहीं होंगे। मींस वो पश्चातवर्ती वाद कंटिन्यू है, वो हो सकता है। कैसे? न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के वर्जन के प्रावधान, वर्जन का मतलब विचारण में आगे कार्रवाई न करने का प्रावधान जो है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत पश्चातवर्ती संस्थित संक्षिप्त वाद पर लागू है, वो नहीं होंगे, क्योंकि संक्षिप्त वाद में विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को प्रतिरक्षा की अनुज्ञा देने से प्रारंभ होता है, न कि वाद पत्र पेश करने से। संक्षिप्त वाद में सामान्यतः ट्रायल होती ही नहीं है। संक्षिप्त वाद में प्लेंट के बेसिस पे और जो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ ने पेश किए उसके बेसिस पे डिक्री हो जाती है। परंतु यदि प्रतिरक्षा की अनुज्ञा दे दी जाए प्रतिवादी को ऑर्डर 37 के अंदर, तब ट्रायल होती है। जब तक प्रतिरक्षा की क्योंकि मैटर ऑफ राइट डिफेंस नहीं होती वहां समरी सूट में, डिपेंड्स अपॉन द लीव टू डिफेंड ग्रांटेड बाय द कोर्ट। न्यायालय यदि उसको प्रतिरक्षा या बचाव करने की अनुज्ञा देता है तब वो अपना WS पेश कर सकता है डिफेंडेंट, अदरवाइज उसका WS पेश करने का भी राइट नहीं है समरी सूट में। और जब है वो सेकंड प्लीडिंग ही नहीं है, जब WS ही नहीं है, तो ट्रायल है वो किस बात की? ट्रायल होती नहीं है संक्षिप्त है वो वाद में। उस केस में जब है वो प्रतिरक्षा की जो है वो अनुज्ञा है वो नहीं दी गई है, तो संक्षिप्त वाद जो है वो कंटिन्यू हो सकता है यदि प्रतिवादी को बचाव या प्रतिरक्षा की अनुज्ञा है वो नहीं दी गई। और ऐसे पश्चातवर्ती संक्षिप्त वाद पर धारा 10 के प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे, उसको न तो स्टे किया जाएगा और न धारा 10 के प्रभाव से वो वर्जित है, वो कंटिन्यू हो सकता है। Another important case law in respect of the section 10, Manohar Lal Chopra versus Rai Bahadur Rao, Raja Seth Hiralal and others 1962 Supreme Court. In nutshell, the Manohar Lal Chopra versus Seth Hiralal and others. Manohar Lal Chopra versus Seth Hiralal and others 1962 Supreme Court. What was held by the Honorable Supreme Court in this case law? Court held that the provision of section 10 is clear, definite and mandatory. Provision of the section 10 is clear, definite and mandatory, and court cannot exercise the discretion in violation of the
section 10. What is the nature of the provision of section 10? Whether it is directive or the mandatory provision, as per this judgment of the Honorable Supreme Court, provision of section 10 is mandatory. Again, as stated above, it is only the trial and not the institution of the subsequent suit which is barred under this section. What is the bar? Proceed with the trial is barred, institution of the subsequent suit is not barred by the section 10, and it laid down a rule of procedure pure and simple and which can be waived by a party. Hence, if the parties waive their rights and expressly ask the court to proceed with the subsequent suit, they cannot afterwards challenge the validity of the subsequent proceeding. It is already discussed by us. One suit is related to the validity of termination of tenancy of tenant and liability to pay the arrears of the rent, and another suit is for declaration of title. One suit is related to the validity of the termination of tenancy of tenant and liability to pay the arrear of rent, and another suit is concerned to the declaration of title or ownership. Whether the matter and issue are considered the same, the both suits, though both the suits are between the same parties. No, the matter and issue are not directly and substantially in same in the both the suits. In second suit the ownership is disputed, and in first suit the tenancy is the disputed. Therefore, the matter and issues are totally different or distinct, and the provision of section 10 does not apply upon the such suit. Both the suits are not substantially identical. Section 10 CPC shall not be invoked, means the second suit is maintainable and shall not state by the courts to exercise the power conferred under section 10 of CPC. One suit is related to the declaration of title and injunction. Two relief are claimed in the suit, the declaration of title and also the perpetual and mandatory injunction, and another suit is for partition and separate possession. The first suit, previous suit is related to the declaration of title and injunction, and subsequent suit is concerned to the partition and separate possession. Issues involved in the both the suits are entirely different. Therefore, the provision of section 10 does not apply upon the subsequent suit, and subsequent suit may be continued and not barred by the section 10 of CPC. मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल मान्य 1962 सुप्रीम कोर्ट। क्या अभी निर्धारित किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्णय में? धारा 10 के प्रावधान कैसे हैं? आज्ञापक है। कैसे? मैंडेटरी है। हालांकि आज्ञापक के साथ दो शब्द सुप्रीम कोर्ट ने और यूज लिए। क्या? स्पष्ट है, क्लियर, और दूसरा क्या कहा? निश्चित भी है, डेफिनेट भी है, क्लियर भी है और मैंडेटरी भी है। स्पष्ट है, निश्चित है और आज्ञापक है, और न्यायालय धारा 10 के उल्लंघन में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकता। खैर, मुद्दे की बात इतनी सी है, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इज, सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है निर्देशात्मक, आज्ञापक, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। आपको बहुत क्लियर रहना कि प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के अनुसार क्या है? मैंडेटरी है। धारा 10 के प्रावधान है वो क्या है? आज्ञापक है। यद्यपि पक्षकार जो है अपने इस अधिकार को स्टे करने का जो उसका है वो राइट है, स्टे करवाने का जो राइट है वो अपने राइट को वेव कर सकते हैं कि साहब फॉर्मर सूट में प्रोसीडिंग को जो है वो रोक दिया जाए और सब्सिक्वेंट सूट को सुना जाए, वो ऐसे विकल्प का प्रयोग कर सकती है पार्टी। और यदि पार्टी ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप सब्सिक्वेंट सूट को कंटिन्यू करिए, यदि सब्सिक्वेंट सूट में जजमेंट या डिक्री पारित होगी, क्या वो इसको इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि ये सेक्शन 10 के वॉयलेशन में पारित की गई डिक्री? नो। यदि पार्टीज ने कोर्ट से ऐसी रिक्वेस्ट की है कि आप सब्सिक्वेंट सूट है वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि पार्टी वेव कर सकती है, ये रूल ऑफ प्रोसीजर है और पार्टी द्वारा वेव किया जा सकता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। वंस पार्टी ने यदि वेव कर दिया और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप सब्सिक्वेंट सूट को कंटिन्यू करिए, और यदि सब्सिक्वेंट सूट में कोर्ट जो है डिक्री पारित कर देगा, डिक्री पारित करते ही सब्सिक्वेंट सूट में रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। मींस फॉर्मर सूट उसके बाद जो है वो कंटिन्यू है वो नहीं किया जाएगा या उसमें वो ट्रायल नहीं होगी, क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 11 के साथ पढ़ते हैं तो वहां फॉर्मर सूट का मतलब क्या है? डिसाइडेड फास्ट,
विच एडजुडिकेटेड फर्स्ट, जो पहले डिसाइड हुआ है वो क्या है, रेस जुडिकेटा के पर्पज के लिए फॉर्मर सूट है। यदि फॉर्मर सूट को नहीं सुना कोर्ट ने, सब्सिक्वेंट सूट को सुनकर डिसीजन दे दिया जिसमें जजमेंट आ गया पहले, वो क्या है, वो रेस जुडिकेटा के पर्पज के लिए फॉर्मर सूट होगा। तो जो ही सब्सिक्वेंट सूट में जजमेंट या डिक्री पारित कर दी जाएगी तो वहां फॉर्मर सूट सब्सिक्वेंट सूट में है वो चेंज हो जाएगा और उस है वो सूट की ट्रायल है वो सेक्शन 11 से रेस जुडिकेटा के प्रभाव से क्या हो जाएगी, वर्जित हो जाएगी। धारा 10 के क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों ऐसा प्रावधान रखा गया है सीपीसी में? दो विरोधाभासी निर्णयों को पारित होने से रोकना। यदि दो दावे एक ही विवाद के संदर्भ में उन्हीं पक्षकारों के बीच कंटिन्यू रहेंगे, एक कोर्ट जो है फर्स्ट पार्टी के फेवर में डिसीजन दे सकता है, दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी का सूट खारिज है वो कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ सकते हैं टू पैरेलल है वो लिटिगेशन के अंदर, उस है वो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स को, विरोधाभासी निर्णयों को पारित होने से रोकना जो है धारा 10 का उद्देश्य। दूसरा, न्यायालय के जो संसाधन है और जो समय है, कोर्ट का जो टाइम और रिसोर्सेज है उसको भी खराब या नष्ट होने से रोकना जो है धारा 10 का उद्देश्य। धारा 10 जो है ये वाद के संस्थित किए जाने पर रोक नहीं लगाती है, मीन सेकंड सूट फाइल हो सकता है, पश्चातवर्ती वाद जो है संस्थित हो सकता है, उसका है वो इंस्टीट्यूशन बार्ड नहीं है, उसका संस्थित किया जाना, दाखिल किया जाना, दायर किया जाना, पेश किया जाना जो है ये वर्जित नहीं है। धारा 10 में वर्जित क्या है, उसके विचारण में आगे कार्रवाई करना है वो वर्जित है। और विचारण में कार्रवाई कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, विवादों की विरचना से वो स्टार्ट होती है। तो इश्यू बना के और ट्रायल करने से जो है वो धारा 10 है वो रोकती है। इंस्टीट्यूशन है वो हो सकता है सेकंड सूट में समन भी है वो इश्यू किया जा सकता है पार्टीज को, और जो ही समन जाएगा पार्टी के पास जो ही एक एप्लीकेशन आ जाएगी सेक्शन 10 की कि साहब ये जिस डिस्प्यूट के बारे में सेकंड सूट लेके आए हैं इसके बारे में एक ऑलरेडी सूट हमारे बीच में एक अन्य कोर्ट में या इसी कोर्ट में पेंडिंग है, और सेक्शन जो है वो 10 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट उस पहले वाले प्लेंट और दूसरे सूट के प्लेंट को है वो देखता है, उनमें प्लीडिंग जो ली गई, यदि कोर्ट को लगता है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली मैटर इन इशू सेम है बोथ सूट्स के अंदर, दोनों वाद के अंदर सार्थ और प्रत्यक्ष विवादिक समान है, कोर्ट क्या करेगा, धारा 10 की पावर इन्वॉक करेगा और उसी समय जो है उस सब्सिक्वेंट सूट को स्टे कर देगा बिना उसमें किसी प्रकार का इश्यू फ्रेम किए और ट्रायल में कोई आगे कार्रवाई की। यस, तो धारा 10 जो है ये वाद के संस्थापन को या संस्थित करने को नहीं है वो रोकती है या रोक नहीं लगाती है, बल्कि पश्चातवर्ती वाद के विचारण में आगे कार्रवाई करने पर रोक लगाती है या वर्जित करती है। ऐसा भी बुक में इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा कि धारा 10 कब प्रवर्तन में आती है, सेक्शन 10 इन्वॉक कब होता है, कब लागू होता है। तो बुक में इंटरप्रिटेशन में तो आपको यह मिलेगा सब्सिक्वेंट सूट में इश्यू फ्रेम करने से, पश्चातवर्ती वाद में विवादक विरचित करने में, बट मैं आपको उससे एक कदम आगे की बात बताता हूं। प्रैक्टिकली सेक्शन 10 सब्सिक्वेंट सूट में इश्यू फ्रेम करने से पहले भी इन्वॉक हो सकता है। जो ही समन जाएगा सेकंड पार्टी को, समन जाते ही वो सेक्शन 10 की एप्लीकेशन ले आएगा और उस एप्लीकेशन को कंसीडर करके कोर्ट स्टे कर सकता है एट द अर्लियर स्टेज ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इन द सब्सिक्वेंट सूट। तो जहां तक बात एकेडमिक साइड की है, आप ये भी याद रखें जो बुक्स में दे रखा है कि पश्चातवर्ती वाद में विवादकों के स्थिरीकरण के पश्चात जो है धारा 10 वाद को रोका जाने का प्रावधान लागू होता है, या विवाद सेकंड सूट में इश्यू फ्रेम करने के टाइम जो है वो सेक्शन 10 है वो लागू होती है। और धारा 10 का आदेश, 10 के आदेश का मतलब वाद को रोकने का आदेश, स्टे ऑफ सूट जो है, इस ऑर्डर से यदि प्लेंटिफ एग्रीव्ड है तो प्लेंटिफ के पास क्या उपचार है, अपील है क्या उसके पास? धारा 10 के विरुद्ध सेक्शन 104 सीपीसी में अपील हो सकती है क्या? क्योंकि जो सेक्शंस में से अपीलेबल ऑर्डर है वो कहां बता रखे, 104 में बता रखे, और वहां जो है 35A से पहले कोई ऑर्डर ही नहीं बता रखा। तो इसलिए धारा 10 का आदेश अपील योग्य नहीं है। इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या रेमेडी, यदि वादी के वाद को रोक दिया जाएगा तो वादी उसके विरुद्ध जो है वो क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, पुनरीक्षण है वो कर सकता है। कहां? उच्च न्यायालय में। और किस प्रोविजन में? सीपीसी की धारा 115। धारा 10 के आदेश के विरुद्ध उपचार है वो क्या है, रिवीजन है। और कौन सी धारा में होती है रिवीजन सीपीसी में? धारा 115 में। ये यही पर दो एग्जाम्पल इसमें अच्छे हैं, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, या आपको मेन एग्जाम में भी इस प्रोविजन को एक्सप्लेन करना हो तो एक आध एग्जाम्पल आप है वो कोट कर सकते हैं।
इसमें जैसे आप यहां से देखें, ऊपर वालों को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक वाद जो है उसमें किराएदार की समाप्ति की वैधता से संबंधित विवाद है और बकाया जो किराया है उसके भुगतान से दायित्व से संबंधित है। और दूसरा वाद जो उन्हीं पक्षकारों के बीच क्या है, हक की घोषणा के लिए, स्वामित्व की घोषणा के लिए। तो क्या ये दोनों जो वाद है इसमें विवादित समान है? पहला वाद जो है किराएदारी को जो है वो समाप्त कर दिया और ये गलत समाप्त किया भूस्वामी ने या किराएदार ने, और मेरा बकाया किराया भी दिलाया जाए, ये है वाद जो भूस्वामी किराएदार के विरुद्ध है वो लेके आया है। और दूसरा वाद जो है वो हो सकता है किराएदार है वो लेके आया है कि साहब मैं तो किराएदार ही नहीं हूं, इससे वो प्रीमाइसेस का ऑनर हूं, मेरी ओनरशिप है वो डिक्लेयर की जाए। तो क्या ये दोनों दावे जो है वो समान है? क्या एक जैसे जो है वो विवादित है वो है इनमें? नहीं, ये दोनों जो है इनमें इश्यूज अलग अलग है। पहले वाले में इश्यूज टेनेंसी का है, दूसरे वाले में ओनरशिप का है, टोटली डिफरेंट है। ये दोनों में जो है भिन्न भिन्न इश्यूज है, इसलिए धारा 10 लागू ही नहीं होंगे। दोनों सूट पैरेलल है, वो क्या है, वो मेंटेनेबल है या उनको एंटरटेन है, वो किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में दोनों बात काफी हद तक समान नहीं है, इसलिए धारा 10 सीपीसी की जो है वो लागू नहीं होगी। मींस पश्चातवर्ती वाद को नहीं रोका जा सकता, वो कंटिन्यू रहेगा। इसी तरीके से एक वाद में हक की घोषणा और निषेधाज्ञा मींस व्यादेश, शाश्वत व्यादेश या आज्ञापक व्यादेश जो है इनका दावा है वो किया गया। और दूसरा जो वाद पक्षकार समान है बट विभाजन के लिए और पृथक जो है वो कब्जे के लिए संस्थित किया गया। तो पहले वाले सूट में तो क्या है, स्वामित्व की घोषणा है और उसके साथ इंजेक्शन है, और दूसरे वाले दावे में विभाजन का वाद है कि हमारे हिस्से है वो अलग अलग किए जाए और मुझे पृथक कब्जा दिलाया जाए। दोनों दावों की नेचर अलग अलग है। यहां विवादित विषय जो है वो दोनों दावों में पृथक पृथक है, इसलिए धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। दोनों सूट पैरेलल है, वो क्या है, वो एंटरटेनेबल है। दोनों वाद में शामिल विवादक पूर्ण रूप से जो है वो अलग है, इसलिए धारा 10 सीपीसी के प्रावधान इस मामले में भी है वो लागू नहीं होंगे और पश्चातवर्ती वाद को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट क्या है, पार्टीज भी सेम होनी मैंडेटरी है, इश्यूज मैटर इन इश्यूज भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होने आज्ञापक है, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, उसी हक के अधीन जो है वो क्लेम कर रहे हैं, वो ये भी मुकदमाबाजी कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। फॉर्मर सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड विच इज नॉट एडजुडिकेटेड और डिसाइडेड डिटरमाइंड बाय द कोर्ट। ये सब बातें यदि कंप्लीट होती है एक साथ साइमल्टेनियसली, देन सेक्शन 10 है वो लागू। इफ एनी कंडीशन इज मिसिंग, इनमें से एक भी शर्त जो है वो नहीं है, तो धारा 10 के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। पार्टीज डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन है, फिर भी लागू नहीं होगा सेक्शन 10। यदि मैटर एंड इश्यू डिफरेंट है, बाकी सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है, सेक्शन 10 लागू नहीं होगा। लिटिगेटिंग अंडर डिफरेंट टाइटल, उस केस में भी सेक्शन 10 लागू नहीं होगा। और यदि पहले वाला कोर्ट जहां पे सूट इंस्टीट्यूट किया है इनकॉम्पिटेंट कोर्ट है, वो रिलीफ नहीं दे सकता जो सब्सिक्वेंट सूट में है वो क्लेम किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी सेक्शन 10 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। मींस ऑल कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 फुलफिल साइमल्टेनियसली। जो धारा 10 की सभी शर्तें जो है एक साथ उनकी अब वो कंप्लीट होना या संतुष्ट होना है वो आवश्यक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ and the neuroscience versus C. Parmeswaran 2004 Supreme Court. It was held that the object of section 10 is to prevent the court of the concurrent jurisdiction from simultaneously trying the two parallel suits between the same party in respect of the same matter and issue. The fundamental test to attract the section 10 is whether on a final decision being reached in the previous suit, such decision would operate as res judicata in the subsequent suit. Section 10 applies only in the cases where the whole of the subject matter in both the suits is identical, and the key words in section 10 are matter in issue is directly and substantially in issue in the previous instituted suit. The words directly and substantially in issues are used in contradistinction to the words incidentally and collaterally in issues. Therefore, the section 10 would apply only if there is a identity of the matter and issues in both the suits, meaning thereby that the whole of the subject matter in the both the proceeding is identical. And if the whole subject matter of the both the proceeding or suit are not identical,
only the incidental or collateral, then provision of section 10 does not apply. मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंस राष्ट्रीय संस्थान बनाम सी परमेश्वरम 2004 सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि धारा 10 का उद्देश्य क्या है। समवर्ती क्षेत्राधिकार की न्यायालय को समान पक्षकारों के बीच समान विवादकों के संदर्भ में दो समानांतर के विचारण करने से रोकना है। और धारा 10 को आकर्षित करने के लिए मौलिक परीक्षण है वो क्या है, कब धारा 10 है वो लागू है वो होगी, क्या पूर्ववर्ती कार्रवाई में पारित होने वाला अंतिम निर्णय जो है पश्चातवर्ती वाद में प्राग न्याय के रूप में प्रभावी होगा। यदि फॉर्मर सूट में दिया जाने वाला डिसीजन सब्सिक्वेंट सूट के लिए रेस जुडिकेटा के रूप में ऑपरेट होगा तो देन सेक्शन 10 के प्रोविजन लागू होंगे। और यदि फॉर्मर सूट में पारित होने वाला जजमेंट वो रेस जुडिकेटा का इफेक्ट नहीं रखता है तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 10 के प्रोविजन लागू नहीं होंगे और सब्सिक्वेंट सूट जो है वो स्टे है वो नहीं होगा।